Dear students, today we will start third chapter of class 7th, data handling. In this chapter we will study about data, collection of data, organization of data and representation of data. Now first we come on data. What is डाटा? इंफॉर्मेशंस जो हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं किसी पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसे हम डाटा कहते हैं. Those informations which are collected by an observer for a specific purpose are called data. Now for example, marks obtained by the students of a class in math test. जैसे मान लीजिए हमने कोई टेस्ट लिया, मैथ का टेस्ट लिया, उसमें पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए उनको हम डाटा कह सकते हैं कि दीज आर रॉ डाटा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ए फैक्ट्री, दे मे बी मेल और फीमेल. किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों की जो संख्या है, नंबर है, उनको भी हम डाटा कह सकते हैं, उनके नंबर को. दे आर डूइंग द वेरियस टाइप ऑफ द वर्क इन ए फैक्ट्री. नाउ मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए वीक. हम डेली टेम्परेचर हम देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर आता है दिन का टेम्परेचर, कि आज मिनिमम टेम्परेचर ये रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहा है, उन सबको मिला करके हम डाटा कह सकते हैं, कहते हैं. और सभी ऑल ऑफ दीज आर डाटा, रॉ डाटास. नाउ वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स. सो वी हैव कम ऑन डाटा हैंडलिंग. नाउ व्हाट आर द डाटा हैंडलिंग? We need to collect and organize and represent that data to draw inference from it. This is called data handling. हम इसे डाटा हैंडलिंग करते हैं. हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं डाटाज को. देन जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिल जाती है, जिस पर्पज के लिए हमने उनको इकट्ठा किया है, इसे हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं. इसके बाद नाउ फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा. वी कम कलेक्शन ऑफ डाटा. नाउ कलेक्टिंग डाटा. Collecting data, collection of data depends upon the further requirement of that data. Collection of data depends upon the further requirement of the data Now before collection, any data must be, before collecting any data, we must know that what will be the use of data. We must know that
what will be the use of data? What will be the use of data if we have to compare the marks of the toppers in different classes? Then we need to the data of all classes, not only one class having any topper. If we have to compare the marks of the toppers in different classes, different sections of a class, then we need the data of all the sections not only one section. Of a class having any topper. Now, topper may be in different sections of a class. Section may be according to the school, according to the amount of the number of the students. If number of students are greater, then number of class sections of a class in the school must be greater. Then we have to need the data of all the sections of a class. हमें एक ही क्लास के जो डाटा हैं उन सबकी सभी सेक्शन के डाटा की हमें जरूरत पड़ेगी, और हम उनमें से जो डाटा होंगे टॉपर्स का डाटा हमें सेलेक्ट करना है कि हु इज टॉपर इन दैट क्लास, टू सी द मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द टॉपर्स of in all the sections. So we have to find the topper of a class, and in such a way we also find the toppers in different classes. Therefore we have to need the data of all the classes of a school. So now that is called collection of data, because collection of data depends upon the further requirement. What is the requirement of what is our need? Therefore collection of data depends on the need. What is our need? If we any data, we must know that what will be the use of data. तो सबसे पहले हमें डाटा इकट्ठा करने से पहले, डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें डाटा कौन से डाटा की हमें जरूरत है, किस चीज की हमें जरूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करने होंगे. और एंड सच टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ डाटा. now we come on organization of data. Organization of data. Organization of data. Before using the data, first we need to organize. Before using data,
Before using data, any data, first we need to organize it in a systematic manner. In a systematic manner. हमें डाटा को यूज करने से पहले उनको हमें सिस्टेमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करना है, सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड इजीली. It could be understood easily. Generally, data is organized in tabular form. Generally, data are organized in tabular form. In tabular form, as it is easy to read and understand. Now first we have to, what are the organization of data? Before using any data, हमें किसी भी डाटा को यूज करने से पहले हमें जरूरत होती है फर्स्ट वी ऑर्गेनाइज द डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर. तो सबसे पहले जब हम डाटा को यूज करेंगे तो यूज करने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी कि हम डाटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करें. इसके बाद जिससे हम आसानी से इजीली हम उसे समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. मोस्टली जो जनरली डाटा होते हैं उनको ऑर्गेनाइज जो करते हैं हम उनको टेबुलर फॉर्म में करते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. इनको टेबुलर फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जब इनको टेबुलर फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो इनको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, हमें कोई ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना होगा. और दूसरी बात, इसको समझने में भी हमें डाटा को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. इसलिए हम मोस्टली डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. नाउ वी हैव टू राइट marks of class. We take example, marks obtained by the students, by the 10 students in a math test. Now we will write the marks here. Number of students, यहाँ पर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. हमें मार्क्स गिवन है, हमारे पास में मार्क्स हैं अप टू 10 and these are the 35 students. We have number of students is 35. So we have to write 2, 1, 2, 3,
we write 3, 9, 10, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8 and 8. इसके बाद 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 times and 4. 4 is 1, 4, 5 times 4. So number of students 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31, 32, 33, 34. Now 10 हमारा जो आया है वो वंस आया है, 10 हमारा एक बार आया है, 9 इसमें एक बार आया है और 8 हमारा 1, 2, 3, 4, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स आ गया, 8, 7 हमारा 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स आ गया, 6 हमारा 1, 2, 3, 4, 6 4 टाइम्स, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 4, 4 है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 हमारा 1 एंड 2, इसके बाद 2 हमारा 1, 2, 3, 4 and 1. Now we will write here these are, we have to write marks first. Here marks. Now number of students or frequency. We will write here first tally marks. यहाँ पर हम tally marks लिख देते हैं, number of student frequency को बाद में ले लेंगे. Tally marks we will use tally marks. Tally marks और यहाँ पर लिख देते हैं number of students और फ्रीक्वेंसी. यहां पर हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को बाद में लिख देंगे हम. और 1 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो हमने 1 एक हमने 1 लाइन ड्रॉ कर दी और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 1 हो गया. 2 हमारा 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, इसलिए 1, 2, 3, 4 हमने लाइन ड्रॉ कर दी. 2 हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4. इसके बाद हमारा नंबर आता है 3 हमारा नंबर है 1, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर दी. इसके बाद 4 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 को ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, लाइन एन बना देंगे. 5 तो 4 आया है, 5 हमारा आ रहा है, 5 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स. तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 के लिए n
और 1 एंड 2, ये 7 नंबर हो गए। इसके बाद 6 हमारा नंबर आ रहा है, 6 से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, 6 आया 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और 7 हमारा आ रहा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4। तो यहां पर हम काउंट करके ले देंगे, यह 4 2, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 4, इसके बाद 4। नाउ वी विल राइट 8। 8 हमारा 1 2 3 4 5 6, 8 हमारा 6 टाइम्स है, 9 1 टाइम है, और 10 भी 1 टाइम है। यहां पर हम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, इसके नीचे ड्रॉ कर लेंगे। और नेक्स्ट यहां पर हमने लिख दिया 9 8, here 8 9 and 10। टैली मार्क्स के नीचे टैली मार्क्स वी विल राइट 8 हमारा कितने टाइम्स था, 8 हमारा 6 टाइम्स था, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गया। फिर 9 हमारा आया 1 टाइम, तो 1 लाइन ड्रॉ कर दी, 1 ये हो गया। 10 हमारा आया 1 टाइम। तो ये हमारे सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। अब इनको काउंट करें तो 6 एंड 2 8, 9 9 एंड 6 15, 20 20 एंड 7 27, 27 एंड 8 35। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे। यहां पर हम सम करके लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 35। टोटल हमारा आ गया 35। हमने इनको डाटा को, जो डाटा हमें दे रखे थे, रॉ डाटा गिवन थे, हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स थे, उनको हमने एक सेम वे में लिख दिया था अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर ए टेबल and we organize the data in a tabular form. Now in such a way that we can represent data in a tabular form. So in this tabular form we can easily understand इस टेबल के अकॉर्डिंग, in this tabular form we will easily read and understand that how many students get how much marks, that how much students get how much marks. So we have to collect the data, organize the data in a tabular form. Now representative values, now we have come on representative values. Representative values, there must be a particular value which represent the complete data. Representative value a particular value which represents the complete data This is the average of the data
दिस इज द एवरेज ऑफ डाटा। हम डाटा का एवरेज ले लेंगे। द एवरेज लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डाटा। द एवरेज ऑफ डाटा lies between smallest and largest data so it is called central tendency of the group of data. So it is called central tendency of the group data. Now we come, सबसे पहले हम इसको देखें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है। पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है विच रिप्रेजेंट द होल डाटा, सारे डाटा को एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकती है। दैट इज वी कैन टेक द एवरेज ऑफ ऑल द डाटा, सभी डाटा का हम एक एवरेज ले लें तो द एवरेज ऑफ डाटा जो होगा वो मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में लाई करेगा। एवरेज ऑफ द डाटा विल लाई बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डाटा, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप डाटा। इसलिए हम इसको ग्रुप डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इट मीन्स एवरेज को या मीन को, एवरेज और मीन, इट मे बी मीन, इसको मीन भी कह सकते हैं एवरेज को। नाउ वी हैव कम ऑन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन the mean is the average of the number of observations. The mean is the average of the number of observations. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है उनके एवरेज को ही हम मीन कहते हैं। मीन ऑफ डाटा विल बी, वी कैन राइट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। एंड वी हैव टू सपोज इफ x bar is arithmetic mean of data x1, x2, x3, x4, x5 and so on up to xn। नंबर ऑफ डाटा हमारे पास में n है। फर्स्ट डाटा को हमने x1 कहा, सेकंड डाटा को x2 कहा, थर्ड डाटा को x3, इसी तरह से x4, x5 and so on up to n डाटा को हमने xn कह दिया। देयरफॉर मीन होगा हमारा, अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में am, a for arithmetic, am mean, m for mean। arithmetic mean is equal to sum of all observation, sum of all observation, sum of all observation upon total number of observations, total number
of observations, total number of observations. हम इसको अर्थमेटिक मीन इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे. हमारे जो डाटा हैं वो x1 x2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस एंड सो ऑन अप टू xn, जितने भी हमारे डाटा हैं अपॉन n. n मीन्स टोटल नंबर ऑफ डाटा हमारे, जैसे उसमें 35 थे, इसमें हमारे 10 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डाटा. अब हम एक एग्जांपल लेंगे अरिथमेटिक मीन का, जिससे हम अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं. द स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन ए साइंस. एग्जांपल फर्स्ट, the score of 8 students in science is given. Find the average score of the students. Find the average score of the students. हमें डाटा गिवन है 25, 28, 23, 24, 29, 35, 42 एंड 48. ये हमें डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8. इट में भी 10 भी हो सकते हैं. अब हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ all observation upon number of observation. Is equal to sum of all observation 25 plus 28 plus 23 plus 24 plus 29 plus 35 plus 42 plus 48 upon में 8, because total number of data observations are 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. इन सबको प्लस करके हमारा आया 254 अपॉन 8, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 254 को हम डिवाइड कर लें 8 से, तो 8 1 जा 8 3 जा 24 1, 8 1 जा 8, 14 में से 8 माइनस कर दिया 6 आया, पॉइंट लगा दिया डेसिमल, 0 यहाँ पर लगा दी, 8 7 जा 56, 4 बचा 0 और 8 5 जा, that is equal to 31.75. Therefore, arithmetic mean will be equal to 31.75. अब आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज. What is the range? रेंज क्या है? रेंज में हम सबसे पहले लेंगे अरिथमेटिक मीन लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन. हम ये जानते ही हैं, ए रेंज इज ए डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट. ए रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन
the largest and smallest observation therefore we can write range is equal to largest observation minus smallest observation so we will take an example if the age of the student if the age of the students in a class is given, then what will be the range of the given students. Now we will take the values range of age of the students यहाँ पर हमें दी हुई है 13, 14, 14, 14, 15, 16 हमारा 1, 2, 16, 16 यहाँ हमारे पास में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं। अब हमें यहाँ से रेंज फाइंड आउट करनी होगी तो सॉल्यूशन में रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन smallest observation is equal to largest observation is 16, smallest is 13, then range is 3. Therefore students, in next class we will come on exercise of 3.1 exercise. So this class is over and I hope that you have understand वेरी केयरफुली। इससे पहले मैं एक बार आपको रेंज और बता दूं। ए रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच जो डिफरेंस आएगा उसको हम रेंज कहेंगे, यानी रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये हमने एग्जांपल ले लिया। So I hope that you can solve such type of the problems and thank you all of you.